لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو وقت سے بھی ماورا ہے، اللہ کی سب سے پہلی تخلیق، پہاڑوں کے اٹھنے اور جھکنے سے پہلے، ستاروں کے پہلی بار ابدی رات میں جگمگانے سے پہلے، وقت کے اپنی پہلی سانس لینے سے بھی پہلے صرف اللہ تھا۔ اللہ جو الاول ہے، سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ، وہ بے تخلیق خالق جو ہر حقیقت کے پیچھے ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث 7418 میں فرمایا، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی فرشتہ پر مار رہا تھا، نہ کوئی روح تھی جو یاد کرتی، نہ کوئی جگہ پھیلی ہوئی تھی، نہ کوئی قلم چل رہا تھا، بس اللہ اپنی لامحدود بے مثال شان میں موجود تھا۔ پھر اللہ نے اپنی مرضی سے کائنات کی کہانی کا آغاز فرمانا چاہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اطلاع، ہماری تمام ویڈیوز اب انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہمارے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں۔ آپ ہماری پلے لسٹس میں جا کر بآسانی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ پیارے ناظرین، وہ کیا چیز تھی جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی؟ علماء نے اس پر گفتگو کی، اولیاء اللہ اس پر روئے، فلسفیوں نے غور کیا اور صوفیاء نے اس حقیقت کا ذائقہ چکھا۔ آئیے ہم بھی اس مقدس سفر پر چلیں، نہ کہ جسم کی آنکھوں سے بلکہ دل اور روح کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، جسے نور محمدی کہتے ہیں۔ مگر کیسے اور کیوں؟ آئیے اس ربانی ظہور کے سفر کو جانچتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث جو عبدالرزاق، بہقی اور دیگر کتب میں موجود ہے، جسے بڑے بڑے علماء جیسے امام کسلانی، امام سیوطی اور امام غزالی نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نور تھا۔ یہ معنی صدیوں سے روحانی علم رکھنے والوں نے قبول کیا، کیونکہ یہ حقیقت کی گہرائیوں سے میل کھاتا ہے اور وجود کی اصل سے ہم آہنگ ہے۔ اللہ تبارک قرآن مجید میں سورہ الاحزاب 45 سے 46 میں فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ سراجن منیرن بنا کر۔ علماء جیسے امام قرطبی اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہاں سراجن منیرن صرف نبی کی ہدایت کا چراغ ہونا نہیں، بلکہ اس نور نبوی کی طرف بھی اشارہ ہے جو آسمان و زمین کو روحانی طور پر منور کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ 5:15 میں فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ بہت سے مفسرین جیسے امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی اور قاضی ایاز کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ یہاں جو نور کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربانی نور و ہدایت ہیں۔ یہ نور محمدی کوئی مادی روشنی نہیں، نہ ستارے کی نہ آگ کی، بلکہ یہ ازل کا نور ہے، وہ ربانی ارادہ جو نوری وجود میں ڈھل گیا، وہ نور جس سے کائنات کی ہر چیز پیدا کی گئی۔ اولیاء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ تمام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی، آسمانوں کی تخلیق سے پہلے، قلم سے پہلے، لوح سے پہلے، عرش سے پہلے، بس وہی نور تھا۔ ایک اور حدیث ترمذی حدیث 3319 اور مسند احمد حدیث 23108 میں ہے، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے، لیکن قلم سے بھی پہلے ارادہ ہونا ضروری تھا، اور ارادے سے بھی پہلے ایک مقصد ہونا لازمی تھا۔ علماء نے اس کو یوں بیان کیا، نور محمدی سب سے پہلا روحانی وجود تھا، جبکہ قلم سب سے پہلا مادی اور ظاہر وجود تھا، جس سے تقدیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں اسی مفہوم کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اسی طرح امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اور قاضی ایاز نے الشفا میں بیان کیا ہے۔ یہی وہ مکمل حقیقت ہے جو صدیوں کے علماء، صوفیاء اور عاشقوں کی زبان پر رہی،
बेहकी की दलाइल नबू की हदीस में आता है, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। मसनद अहमद की हदीस 17,163 और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत 4,175 में हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, बेशक मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त खातमुन नबीयीन लिखा गया था जब आदम अभी मिट्टी में थे। ये रिवायत इमाम बेहकी ने दलाइल नबू में नकल की है। इमाम हाकिम ने इसे सही करार दिया और इमाम सिवती, इब्ने कसीर जैसे उलमा ने अपनी तफसीरों में इसे कबूल किया है। सुनन तिरमिजी की हदीस 3609 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हजरत तिरमिजी रहम अल्लाह अलैह ने इस हदीस को हुस्न सही कहा है। इस हदीस का मतलब और वजाहत, इसका मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दर्जा और उनका नूर अल्लाह के इल्म और तकदीर में उस वक्त भी तय हो चुका था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात इशारा करती है आपकी नबूवत की अजली हैसियत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात में मुनफरिद मकाम पर, और इस बात पर कि आपकी नबूवत अल्लाह के अजली मंसूबे का हिस्सा थी। ये मतलब नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद था, बल्कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नूर मोहम्मदी और मकाम पहले ही आलम गैब में मौजूद और तयशुदा था। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहम अल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अल्लाह की तरफ से आदम के जिस्मानी वजूद से पहले ही लिख दी गई थी। इमाम कुस्तलानी रहम अल्लाह अलैह ने अल-मवाहिबुल लदुनिया में इस रिवायत को इसलिए बयान किया कि वो मुहम्मदी हकीकत की कदीमी और अजली हैसियत को वाज़ेह करे। तो प्यारे नाजरीन, सारी कायनात का मकसद क्या है? अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अगर तुम ना होते ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं कायनात को पैदा ना करता। इस बात की वजाहत उलमा जैसे हाकिम, इब्ने अरबी और इमाम बुसीरी ने अपनी किताबों में की है। कहा जाता है कि अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर नजर फरमाई, फिर उस नूर से कलम को पैदा किया, कलम से लोह महफूज को पैदा किया जिस पर तमाम तकदीरें लिखी गईं, फिर अर्श को, फिर कुर्सी यानी पाए तख्त को पैदा किया, और फिर पानी को पैदा किया जिस पर अर्श कायम था, जैसा कि कुरान की सूरह हूद आयत 7 में है, और उसका अर्श पानी पर था। लेकिन वो पानी क्या था? ये आम पानी नहीं बल्कि माउल हयात था, जिंदगी का पानी जिससे सारी रूहानी और मादी हकीकतें वजूद में आईं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने तफसीर तबरी में फरमाया, अर्श के नीचे एक पानी है जिससे तमाम चीजें पैदा हुई, और इस पानी के ऊपर अर्श अजमत है जो अल्लाह के निजाम और हुक्म का निशान है। लेकिन ऐसा तख्त नहीं जिस पर अल्लाह बैठे, बल्कि ऐसा तख्त जो उसका हुक्म जाहिर करे। और इस सब से पहले, अर्श से भी पहले, कलम से भी पहले, पानी से भी पहले नूर था। आइए अजीम सूफी और फलसफी शेख अकबर इब्न अरबी की बात सुनते हैं। वो नफसुर रहमान यानी अल्लाह की सबसे पहली सांस का जिक्र करते हैं। वो फरमाते हैं कि आदम से वजूद की तरफ सबसे पहली हरकत कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक सांस, एक रहमत भरा सांस था जिससे हर चीज निकली। इस सांस में था अल्लाह के नाम, मखलूकात की हकीकतें, वजूद के कवानीन, और सबसे पहली हकीकत जो अल्लाह की जात के सबसे करीब थी वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और फिर उस नूर से सारी कायनात वजूद में आई। इसी बात की बाज़गश्त रूमी के अशआर में मिलती है। वो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह के अर्श का तवाफ कर रहा था 70,000 साल कबल, उस वक्त से जब आदम की मिट्टी भी तैयार ना हुई थी। और ये सिर्फ शायरी नहीं बल्कि रूहानी कायनाती हकीकत है। सूफी मतून में नूर मोहम्मदी को कुल्ली कायनाती अकल, अल्लाह के नामों का मुकम्मल मजहर और वो आईना कहा गया है जिसमें अल्लाह अपनी शान देखता है। हम अपनी पिछली वीडियो में कायनात 7 कोयती दीनारे जहानों का जिक्र कर चुके हैं और अपनी इब्तिदाई वीडियो में ये बात बयान कर चुके हैं कि कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह कहाँ था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सिर्फ रोशनी नहीं था बल्कि एक जिंदा उसूल था, तमाम कायनात का नक्शा। जैसे हर जर्रे में एक निजाम है, हर मखलूक का एक मकसद है और हर दिल मोहब्बत के लिए तड़पता है। ये सब इसी असल नूर के परतों हैं। सूरह अल हशर आयत 24 में कुरान कहता है, आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है मगर वो हस्ती जिसे ये नूर संभालने और जमीन पर लेकर चलने के लिए चुना गया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
इसी लिए पूरी कायनात की तख्लीक इसीलिए हुई कि ये नूर कभी जमीन पर उतरे, इंसानों के बीच चले और दिलों को मुनव्वर करे। यही वजूद का राज है। कुरान भी उस नूर का जिक्र करता है, हालांकि जरा पोशीदा अंदाज में। सूरह अल माइदा आयत 15 में, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आई है। मुफस्सिरीन जैसे इमाम राजी, कुर्तबी और इब्न कसीर फरमाते हैं कि ये नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये महज इस्तिआरा नहीं बल्कि हकीकी रूहानी हकीकत है। अब गौर कीजिए, सबसे पहली मखलूक कोई मादी शे नहीं थी, ना पहाड़, ना सूरज, ना कहकशाएं, हत्ता कि वक्त भी नहीं। सबसे पहली मखलूक रोशनी थी, महबूब का नूर, जिसका कोई रंग ना था मगर तमाम रंग उसी से निकले, जिसका कोई जिस्म न था मगर हर जिस्म उसी से बना, जिसकी कोई आवाज ना थी मगर हर परिंदे, हर मौज, हर दिल की सदा इसी से है जो अल्लाह को याद करे। और इसका मतलब आपके लिए क्या है कि आपके जिस्म के बनने से पहले, आपकी रूह फूंकने से पहले, आप पहले ही अल्लाह के यहां लिखे जा चुके थे। आप हादिसाती तौर पर पैदा नहीं हुए। आप सिर्फ मिट्टी और इत्तेफाक का खेल नहीं, आप एक मुकद्दस सिलसिले का हिस्सा हैं जो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, और आपके अंदर भी इस नूर की एक झलक है जो अपनी असल की तरफ लौटने के लिए तड़पती है। इसीलिए जिक्र, अल्लाह का याद करना सिर्फ अमल नहीं बल्कि घर वापसी है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जज्बाती बात नहीं बल्कि वजूद की असल है। इसीलिए सन्नत पर चलना रस्म नहीं बल्कि इस अजली नूर से जुड़ना है। सूफिया कहते हैं, तुम मोहब्बत के नूर से पैदा किए गए, महबूब के साए में जीते हो और इसी अब्दी नूर की तरफ लौट जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसान नहीं, वो दरवाजा हैं जिससे तख्लीक शुरू हुई, और वो मोहर हैं जिससे ये सिलसिला खत्म होगा। वो पहला नूर है, आखिरी रसूल है और तमाम जहानों के लिए हमेशा रहने वाली रहमत है, जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह अल अंबिया आयत 107। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया? अलम जो तकदीरें लिखे, लोह महफूज, अर्श, या वो पानी जो अर्श के नीचे था? नहीं, सबसे पहले पैदा हुआ नूर, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी से कलम, इसी से लूह, इसी से अर्श, इसी से फरिश्ते, इसी से आसमान और जमीन, और इसी से आप। सबकी इब्तिदा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और एक गहरा सवाल, जब कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह ने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा फरमाया? आइए इस मुकद्दस राज की वादी में दाखिल हूं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सूफिया के अक़वाल और उलमा की तहरीरों में बयान हुआ। एक, अल्लाह का हुक्म कुन के जरिए तख्लीक। अल्लाह वैसे तख्लीक नहीं करता जैसे इंसान करते हैं। वो ना अपने हाथों से बनाता है, ना औजारों से ढालता है। अल्लाह कुरान में सूरह यासीन 36-82 में फरमाता है, बस इसका हुक्म यह है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। इसी उसूल के मुताबिक नूर मोहम्मदी की तख्लीक भी सबब और मुसब्बब के जरिए नहीं हुई, ये अल्लाह की मर्जी और कलाम से वजूद में आई। सूफिया और रूहानी बुजुर्गों की रिवायात में आता है कि अल्लाह ने अपने नूर से फरमाया, मैं चाहता था कि पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से मोहम्मद का नूर पैदा किया। ये कौल सूफिया कराम जैसे इमाम गजाली, इब्न अरबी और शाह वलीउल्लाह ने नकल किया है, जो इस इलाही इरादे और इस पोशीदा खजाने की पहचान की ख्वाहिश को बयान करता है। लिहाजा नूर मोहम्मदी अल्लाह के नूर से पैदा हुआ, जात में नहीं बल्कि इलाही रहमत और हुस्न के मजहर के तौर पर। 2, शेख अकबर इब्न अरबी की वजाहत, तजल्लियाती नूर। अपने कायनाती नजरियात में इब्न अरबी फरमाते हैं कि सबसे पहली मखलूक जिसे वजूद दिया गया वो हकीकत मोहम्मदिया है। ये कोई जिस्म या रूह नहीं बल्कि इलाही कलाम का नूरानी मजहर है। ये ला महदूद यानी अल हक और मखलूक यानी अल खल्क के दरमियान एक फल है। इब्न अरबी लिखते हैं, नूर मोहम्मदी मुतलक का सबसे पहला ज़हूर है, यानी इससे पहले कोई दुनिया न थी, बल्कि अल्लाह के अस्मा और सिफात का पहला अक्स एक वाहिद नूर की सूरत में ज़हूर पजीर हुआ, और फिर इसी से सारी कायनात का सिलसिला जारी हुआ। 3, इमाम कुस्तलानी और नूर मोहम्मदी। इमाम कुस्तलानी अपनी किताबुल मवाहिबुल लदनिया में बयान करते हैं, जब अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाने का इरादा किया तो सबसे पहले मोहम्मद का नूर पैदा किया, फिर 70,000 साल तक उसे कुर्ब के मकाम में रखा, फिर उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसी मशहूर रिवायत के मुताबिक एक हिस्सा कलम बना, एक हिस्सा लौह बना, एक हिस्सा अर्श बना और
चौथा हिस्सा आसमान, जमीन और तमाम मखलूकात में तकसीम हुआ। ये तशबीही अंदाज दरअसल ये बताता है कि सारी कायनात इसी नूर मोहम्मदी के अक्स और तजल्लियात से पैदा हुई। 4. शाह वलीउल्लाह देहलवी का नजरिया। 18वीं सदी के अजीम इस्लामी मुफक्किर शाह वलीउल्लाह ने लतीफ़ा मुहम्मदिया यानी मोहम्मद की हकीकत को पहली तख्लीक करार दिया। वो अपनी किताब हज अल बालिगा में लिखते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत वो पहला नूर है जो अल्लाह की जात से नमूदार हुआ और उसी के अंदर पूरी कायनात का नक्शा मौजूद है। ये नक्शा यानी मुब्दा ही दरअसल कायनात को एक मुनज़्ज़म और मकसद वाले सिलसिले में तरतीब देता है। 5. इमाम गज़्ज़ाली मोहब्बत को तख्लीक का मुहर्रिक करार देना। अपनी रूहानी किताबों में इमाम गज़ाली नूर मोहम्मदी की तख्लीक को महज एक फलसफियाना हकीकत नहीं मानते, बल्कि उसे इलाही मोहब्बत का मुजाहरा करार देते हैं। अल्लाह एक हदीस कुदसी में फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा किया ताकि पहचाना जाऊं, और सबसे पहले जिसे पहचान का वसीला बनाया गया वो नूर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं पैदा हुआ, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मोहब्बत के लिए और अल्लाह के अस्मा का आईना बनकर। जिस्मानी नहीं बल्कि एक लाजमानी और बरतर हकीकत। ये बात याद रखनी चाहिए कि नूर मोहम्मदी ज़मान और मकान में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ज़माना खुद वजूद में नहीं आया था। ये कलम के लिखने से पहले, फरिश्तों की इबादत से पहले और पहले के तसव्वुर से भी पहले पैदा हुआ। ये तख्लीक आलम अमर में हुई, जहां अल्लाह कुरान में सूरह अल-आराफ 7 चुन में फरमाता है। यकीनन इसी की है तख्लीक भी और हुक्म भी। खुलासा, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पैदा हुआ? ये अल्लाह के नूर से पैदा हुआ, अल्लाह की पहचान की चाहत के तौर पर। ये कुन के हुक्म से पैदा हुआ, ना कि वक्त या मादे के जरिए। ये तमाम तख्लीक में सबसे पहली शे है और इसी से हर चीज का ज़ुहूर हुआ। ये एक कायनाती हकीकत है, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम अंबिया के नूर में और कायनात की हर खूबसूरती में मौजूद है। यही है असल नक्शा और अल्लाह के अस्मा का आईना। नूर मोहम्मदी हमारे जैसा पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसे पैदा किया गया ताकि वो सब कुछ पैदा करे। शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको ये मवाद पसंद आया हो और फायदा पहुंचा हो तो हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी कम्युनिटी को फैलाने और मजीद सच्चाई के मुतलाशियों तक पहुंचाने में मदद देंगे और आइंदा आने वाली इस्लाम, तसव्वुफ और औलियाओ अल्लाह की जिंदगियों पर मबनी वीडियोस को भी कभी मिस ना करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ उस इल्म के सफर को जारी रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।